carcinoma, and this is an important topic in surgery, and I'll be talking about all of the stuff which you need to know which can come up in an examination, and I will be talking about it in a easy manner but a conceptual manner so that you actually get what you're studying, because this topic is not written very well in Dogar. So hepatocellular carcinoma is also known as hepatoma, which is a bit of a misnomer because this name basically suggests that it is a benign tumor, while we know that hepatocellular carcinoma is a primary malignant tumor of the liver, and it basically accounts for 80% of primary liver tumors. And now we need to have an understanding of the context in which hepatocellular carcinoma develops. The reason hepatocellular carcinoma is most common in the Southeast Asian and African populations is because in these areas, hepatitis B and hepatitis C are endemic, and infection by either of these leads to chronic liver disease, and in the context of chronic liver disease, hepatocellular carcinoma develops. Oftentimes पहले cirrhosis होता है and cirrhosis से progression होती है towards HCC. इसके अलावा there are certain other causes जो कि पता होने चाहिए. They can come up in OSPE, they can come up in a theory exam. Most important infection by hepatitis C and hepatitis B. We all know कि कितनी high prevalence है दोनों infections की, especially in Pakistan. इसके अलावा environmental factors, अगर contamination हो food products की by aflatoxins, ठीक है, alcohol भी contribute करता है towards the development of HCC, ठीक है, as well as smoking. We know कि smoking and alcohol are risk factors for pretty much any cancer. इसके अलावा non-alcoholic fatty liver disease is a very important risk factor. So what is non-alcoholic fatty liver disease? You probably know कि patients who don't have the most healthy lifestyle, they have sedentary lifestyle, they don't have much physical activity, their food habits aren't the best, they oftentimes develop obesity and type 2 diabetes mellitus and hyperlipidemia. This is known as metabolic syndrome. और इस metabolic syndrome के context में जो liver disease develop करती है, that is known as non-alcoholic fatty liver disease. So ये भी एक important risk factor है. इसके अलावा we have hemochromatosis, जिसमें iron की deposition होती है liver में. It's a genetic condition, as well as Wilson's disease, again genetic condition जिसमें copper की deposition होती है liver में, and alpha-1 antitrypsin deficiency, again a genetic condition. So in conditions के context में भी patient can develop and to develop hepatocellular carcinoma. Sometimes background में कोई autoimmune condition होती है जैसे कि primary biliary cirrhosis या कोई autoimmune hepatitis, तो ये भी risk factors हैं. So how does the patient present? Oftentimes patient present करता है with the signs and symptoms of chronic liver disease. वो क्या होते हैं? The patient will be weak, the patient will feel weak, the patient will feel unwell, patient हो सकता है slightly jaundiced हो, which would be seen on examination of the sclera. ठीक है, patient might have episodes of hematemesis because secondary to variceal bleeding. ठीक है, patient might have altered mental status. तो present वो in context में करता है and ultrasound पर the HCC is seen. Occasionally advanced HCC की symptoms के साथ भी patient present करता है जो कि non specific है, primarily weight loss and anorexia. ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं. वी नॉर्मली डोंट नीड बायोप्सी, हम नॉन इन्वेसिव इमेजिंग की मदद से डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं. व्हाट डू वी डू? अल्ट्रासाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनएक्सपेंसिव, आसानी से अवेलेबल है. वी कैन गो फॉर अल्फा फीटो प्रोटीन मेजरमेंट्स, ठीक है, दे आर फेयरली स्पेसिफिक, ठीक है. एंड अगर AFP की वैल्यू 400 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आती है, ठीक है, इन अ पेशेंट हु डज नॉट हैव सिरोसिस, दैट मीन्स के it is 95% specific for HCC. लेकिन 400 nanogram per ml is a very high amount. The normal है that is about 20. So it's a good idea that you always remember to mention AFP measurements, ठीक है. इसके अलावा CT scan, specifically triphasic CT scan, that is super important. उसमें क्या होता है कि contrast दिया जाता है intravenously, and we know कि liver की dual blood supply होती है, arterial भी होती है and vein के ज़रिए भी होती है, portal venous supply भी होती है और arterial भी होती है, ठीक है. एंड जो आर्टीरियल सप्लाई वो डायरेक्टली आ रही होती है फ्रॉम द हार्ट. द पोर्टल वीनस सप्लाई फर्स्ट बेसिकली गोज टू द GIT, देन इट रीचेस द लिवर, ठीक है. एनीवेज, सो जब आप इंट्रावीनसली कंट्रास्ट देते हैं ना, सो इट बेसिकली एंटर्स इनटू द आर्टीरियल सिस्टम.
तो जब आप IV कंट्रास्ट देकर एक इमेज लेते हैं ना, तो जो इमेज बनती है ना ड्यूरिंग द आर्टीरियल फेज, ठीक है, उसमें वो लीजन्स बेसिकली प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, विच रिसीव ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। सो कहते हैं कि आर्टीरियल फेस इन्हांसमेंट हो गया, बिकॉज पहले हमने एक नॉन कंट्रास्ट इमेज ली होती है लिवर की, एंड देन वी बेसिकली गिव द कंट्रास्ट। तो आर्टीरियल फेस में आर्टीरियल फेस इन्हांसमेंट हो जाती है, and then a couple of seconds later when all of the contrast has left the arteries and has now actually reached the portal venous system, अब वो लीजन्स जो पहले इन्हांस थे अब वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, एंड वो लीजन्स विच आर सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन उनकी इन्हांसमेंट हो जाएगी। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस में आर्टीरियल फेज इन्हांसमेंट होती है, पोर्टल वीनस फेज में वो इन्हांसमेंट ख़त्म हो जाती है, विच वी कॉल पोर्टल वीनस फेज वॉश आउट। लेकिन बेसिकली वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लीजन। सो आर्टीरियल फेज इन्हांसमेंट होती है HCC में, ठीक है। वी डोंट नॉर्मली नीड टिश्यू डायग्नोसिस, सो वी आर फाइन विद अल्ट्रासाउंड, AFP मेजरमेंट्स एंड ट्राईफेजिक CT, ठीक है। ट्रीटमेंट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन अ कपल ऑफ फैक्टर्स, बड़े अच्छे तरीके से रेली में लिखा हुआ है। एक तो वी नीड टू हैव अ जनरल असेसमेंट कि पेशेंट कैसा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अंडरलाइन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है उसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है, एंड ट्यूमर किधर है, उसका साइज़ कितना है और उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। सो वी हैव a couple of treatment modalities. We have surgery, which is the most important because it is the only one जो कि potentially curative है, ठीक है। इसके बाद we have certain local ablative therapies and we have systemic therapy. सबसे important surgery है, so we'll talk about that first. So surgery में दो options होती है, liver resection and liver transplantation. As a general rule हम कहते हैं कि non-cirrhotic liver में अगर HCC है ना, then the treatment of choice is liver resection, because even if you have to do extensive resection of the liver in someone who has HCC but no cirrhosis, the outcome is really nice because you just need 30% of the liver mass for the liver to be able to regenerate, ठीक है। So if the patient does not have cirrhosis, the liver is non-cirrhotic but there is extensive HCC, उस केस में extensive resection has good outcome। लेकिन अगर पेशेंट को सिरोसिस है, ठीक है, एंड जब पेशेंट को सिरोसिस होता है तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, एंड जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है उसको एसाइटीज़ होगा, उसको कोई और साइन होगा पोर्टल हाइपरटेंशन का, हेमाटोमेसिस के एपिसोड्स होंगे, एनसेफेलोपैथी होगी। सो उस केस में यू कांट डू लिवर रिजेक्शन, बिकॉज इफ़ यू गो फॉर लिवर रिजेक्शन एक्सटेंसिव और अदरवाइज इन अ पेशेंट हु हैज़ सिरोसिस, तो जो आउटकम होती है ना इट्स वेरी बैड, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाद में लिवर फेलियर या सेप्सिस हो जाएगा। तो किन चीज़ों को अपने रूल आउट करना होता है, सिरोसिस को, और सिरोसिस को रूल आउट करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर पेशेंट में कोई पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आप मेजर करते हैं एक चीज़ को विच इज़ नोन एज दी वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर। जो वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर है ना, इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर वो एलिवेटेड है ना तो इट इज़ फेयरली सजेस्टिव ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, और ये एक इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं आउटकम प्रेडिक्टर है, नेगेटिव आउटकम प्रेडिक्टर है फॉर द बेनिफिशंस ऑफ लिवर रिजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को लिवर सिरोसिस है ना, देन जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट बिकम्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए भी वी हैव टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। या तो एक लीजन होना चाहिए HCC का, एंड दैट शुड बी लेस दैन 6.5, लेस दैन और इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर, या फिर अप टू थ्री लीजन्स हो सकते हैं जिनमें टोटल डायमीटर यानी सम ऑफ डायमीटर उन 3 लीजन्स का 8 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, एंड द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द लीजन शुड बी लेस दैन 4.5। सो दो क्राइटेरिया हो गया ना, either we have one lesion which is less than 6.5 centimeters in diameter, or we have up to 3 lesions, but the sum of the diameter of these 3 lesions must be less than 8 centimeter, and the largest diameter of these 3 ought to be less than 4.5. The third criteria that must be met is that there should be no evidence of vascular invasion or any extra hepatic involvement. इसीलिए staging करते हुए you have to go for CT scan of the chest and a bone scan, because those are the sites जिसमें commonly mets जाते हैं from the liver, so those need to be clear before you proceed with liver transplantation. So इसके बाद we have certain local ablative therapies. इनको हम सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं when the tumor is limited to the liver and the patient is not well enough to go for surgery, या जो liver transplant criteria है वो meet नहीं हो रहा, there is some sort of, for example, the size is more than
6.5 of a solitary lesion. अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे then we can go for local ablative therapy. ठीक है ना. सो वी हैव नाम पता होने चाहिए. परक्यूटेनियस स्किन के थ्रू एथनॉल इंजेक्शन. अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में की जाहिर से ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस एथनॉल की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है ट्यूमर का. लेकिन वी कैन ओनली डू दिस इफ़ द लीजन इज़ लेस दैन 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ स्मॉल लीजन लेकिन वो फिट नहीं है सर्जरी के लिए देन वी कैन गो फॉर परक्यूटेनियस एथनॉल इंजेक्शन. फिर है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें प्रोब को पास करते हैं ट्यूमर में अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और फिर थर्मल वेव्स के ज़रिए द ट्यूमर इज़ बर्नड. ये तब कर सकते हैं इफ द साइज़ ऑफ द लीजन इज़ लेस दैन 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैप्सूल के नीचे ट्यूमर मौजूद है ना, या ट्यूमर किसी बाइल डक्ट मेजर वेसल के करीब है, तब हम ये नहीं कर सकते बिकॉज वही रेडियो फ्रीक्वेंसी विल डैमेज द कैप्सूल और कुड डैमेज द आर्टरीज ऑफ द बाइल डक्ट. सो साइज़ भी कम होना चाहिए एंड प्रॉक्सिमिटी में कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी नहीं होना चाहिए. सो हमारे पास 2 मेथड्स हो गए, परक्यूटेनियस एथनॉल इंजेक्शन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. इसके बाद विल टॉक अबाउट ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नाम याद हो. ठीक है. अब ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन में क्या होता है, वी नो कि ज़्यादातर जो HCCs हैं वो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई ले रहे होते हैं ना, इसीलिए आर्टीरियल फेज़ में एनहांसमेंट होती है. सो हेपेटिक आर्टरी में हम एक कैथीटर डालते हैं सबक्यूटेनियसली. कैसे फेमरल रूट से ना, यानी फेमरल आर्टरी के ज़रिए फेमरल वेन के ज़रिए हम कैथीटर को इंसर्ट करते हैं एंड देन वी एंड अप रीचिंग द हेपेटिक आर्टरी. और इस ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन में जब हम बेसिकली पहुंचा देते हैं ना कैथीटर को टू वेयर इट इज़ लोकेटेड, ठीक है, तो फिर उस ब्रांच को ना ब्लॉक कर दिया जाता है विद जेल फोम या किसी कॉइल की मदद से. ठीक है. और फिर कीमोथेरेपी लोकली दी जाती है और जो ब्लड सप्लाई होती है ट्यूमर की वो ब्लॉक कर दी जाती है. तो जब ब्लड सप्लाई इज़ ब्लॉक्ड एंड कीमोथेरेपी इज़ गिवन बाय दिस रूट तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है. सो किन लोगों में ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन इज़ डन? दोज हु हैव इंटरमीडिएट स्टेज ट्यूमर, जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. अनरिजेक्टेबल है. ठीक है. एंड लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा, जैसे कि साइज़ बड़ा है ट्यूमर का या नोड्यूल्स ज़्यादा हैं, हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज सिरोसिस है. ठीक है. एंड वी कांट गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट कुड बी कि साइज़ ज़्यादा है एक सिंगल लीजन का, ये बहुत सारे लीजन्स हैं, तो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा. देन वी गो फॉर ट्रांस आर्टीरियल यानी आर्टीरियल सप्लाई के ज़रिए कीमो एम्बोलाइजेशन. ठीक है ना. ब्लड सप्लाई कट ऑफ करें, एम्बोलाइजेशन का यही मतलब है ना, और हम कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं. इससे ट्यूमर की प्रोग्रेशन भी कम हो जाती है और रिस्क ऑफ इन्वेजन भी कम हो जाता है. ठीक है. अच्छा, याद रखना है कि ऑल ऑफ दीज आर ओनली इफेक्टिव इफ़ देयर इज़ नो सिस्टेमिक मेड्स. यानी इन तीनों के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सिस्टेमिक मेड्स. अगर सिस्टेमिक मेड्स हैं दैन कोई फ़ायदा नहीं परक्यूटेनियस एथनॉल इंजेक्शन का, कोई फ़ायदा नहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का, और कोई फ़ायदा नहीं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन का. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टेमिक थेरेपी में हम क्या देते हैं, सोराफिनिब जो कि एक इनहिबिटर है. ठीक है. ये ओनली इफेक्टिव थेरेपी है जो कि हम मेटास्टैटिक ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ अ ट्यूमर हैज़ मेटासासाइज, आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते. आप फॉर एग्जांपल आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते बिकॉज ट्रांसप्लांट की भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ना सिस्टेमिक मेड्स. तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है विच इज़ सोराफिनिब. और इसका कितना फ़ायदा होता है कि 3 month सर्वाइवल बढ़ जाती है. ठीक है. सो ये नाम पता होना चाहिए, ये MCQs में आ सकता है.